Hello students, welcome once again. Today we are going to discuss the applications of flotation, that is on the page number 37. So as we know that we are discussing the first of all density. So first just we are retake it that is density equal to mass per unit volume. So density is equal to mass per unit volume, and what is the principle of flotation. हमने पढ़ा हुआ है कि principle of flotation क्या है कि अगर if the density of the substance is greater than the density of the liquid may be water, you can say that water because we have enough quantity, that is water. So if the density of the substance greater than the density of the liquid, then it will be sink, then the solid will sink in the water. But if the density of the solid less than the density of the liquid, then it will be float on the surface of water. तो ये float करेगी water के surface पे. Just you have to note down that कि what डेंसिटी का ही खेल है सारा कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिंक होगी सब्सटेंस. इफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द surface of the water. And the density depends upon the mass and volume, as I told you before that. As we know that mass is a constant quantity, it could not be changed, but volume can be changed. सो वॉल्यूम चेंज हो सकता है बॉडी का. अगर ये ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी. इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेज देन द डेंसिटी विल बी इंक्रीजेज. सो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑन द डेंसिटी. Also we know that density of water, as we know that density of water is equal to 1000 kilogram per meter cube, or in other units only 1 gram per centimeter cube. So these are the densities of the water in the different units. So as we did, first of all we have one application related with the ice. You know that when you are immerse some ice cubes into the water, then what will be happen? Ice cubes start floating on the surface of the water because the density of the ice, that is the density of the ice is equal to 920 kilogram per meter cube. And as we know, the density of water is 1000 kilogram per meter. So what is going on? Density of ice is less than the density of the water. So what will be happen? Then ice will start float on the surface of the water. So आइस की डेंसिटी कम होने के कारण वो वाटर की सरफेस पे क्या है फ्लोट करेगी. बिकॉज का आइस जो होती है, एज यू नो दैट आइस हमारी जो सॉलिड फॉर्म में होती है, बट वाटर एज वी नो दैट इन द लिक्विड फॉर्म. So in just due to less density of the ice than that of the water, so that is why it start floating on the surface of water. One more thing, जो बिग मासेस होते हैं ना, इनके बिग मासेस ऑफ और ह्यूज मासेस ऑफ आइस के, उनको हम बोलते हैं आइसबर्ग. इन द ओशियन एट द एंटार्क्टिका और आर्कटिक सागर में क्या होता है, ओशंस में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे पूरा साल बर्फ़ फ्रीज रहती है, बर्फ़ ही होती है, तो बड़े बड़े आइस के जो मासेस होते हैं बड़े बड़े से, वो पानी में तैरते रहते हैं, दैट इज़ उनको आइसबर्ग बोलते हैं. तो क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने लिक्विड में बर्फ़ है, आइस को डाला हुआ है, तो दैन व्हाट विल हैपन, अगर आप आइस के 10 पार्ट्स कर देते हो, 10 पार्ट्स, देन व्हाट विल बी हैपन कि जो तकरीबन 9 पार्ट्स होते हैं ना, वो पानी के अंदर होते हैं. तो सिर्फ ओनली 1 पार्ट ऑफ वाटर इज़ आउट ऑफ द आउट ऑफ द वाटर होता है. सो व्हाट विल बी हैपन कि बहुत ज़्यादा जो आइस का भाग होता है वो अंडर द वाटर होता है, तो थोड़ा सा पार्ट उसका जो आइस का होता है ना, वो बाहर होता है. सो दैट इज़ वाई जितने भी शिप्स होते हैं जो समुंदर में जाते हैं, देन व्हाट विल बी हैपन, वो बड़ा इसका एहतियात रखते हैं कि बड़े सेफ्टी प्रिकॉशन के कारण इसके दूर से निकल जाते हैं, इसके पास से जाते भी नहीं हैं, बिकॉज दे नो दैट वेरी वेल कि ह्यूज मास ऑफ द आइस इनसाइड द वाटर, सो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, डैमेज हो सकता है. सो दैट इज़ वाई दे आर मूविंग फ्रॉम अवे, very away from these big icebergs. So that is the reason. Look at this diagram. So this is an iceberg
लुक एट दैट। सो 9 पार्ट्स उसके वाटर के अंदर है और एक पार्ट दैट इज़ 1/10 पार्ट ऑफ द आइस इज आउटसाइड द वाटर। सो लुक एट दैट, this iceberg that is floating on the surface of the water with the 9 parts inside the water but 1 part outside the water. So look at that density. So I hope you will clear from that diagram. Though, so the second application we are discussing about the iron. सो आयरन की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। दैट इज़ एज वी नो दैट वी हैव द लिक्विड एज ए वाटर। एज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ द आयरन इज़ 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, which is much greater than that of the 1000 kilogram per meter cube of the water. So what is going on? If we have the iron nail or iron needle, it sink in the water, but a ship which is made from the iron, steel and other things, it float on the water. So what is the basic reason? As we know that density equal to mass per unit volume. तो what is going on कि जो iron nail का वॉल्यूम होता है वो कम होता है दैन दैट ऑफ द मास ऑफ द आयरन। सो दैट इज़ वाई उसकी जो डेंसिटी हो जाती है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है, जो हमने एक्जैक्टली यहाँ पे लिखा है। इफ़ द वी आर टॉकिंग अबाउट द नेल और नीडल ऑफ द आयरन, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव द needle of mass 10 gram and its volume is 2 centimeter cube, then the density will be equal to, that is mass per unit volume, that is 10 by 2, then it will be 5 gram per centimeter cube. And as we know that density of the water also 1 gram per centimeter, so it is very clear that the density of the iron nail is much greater than, so that is why it will be sink in the liquid. That is what. So ship के केस में क्या होता है कि जो अफेक्टिव वॉल्यूम होता है, एज वी नो दैट कि शिप जो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं बिकॉज इट्स नंबर ऑफ एरिया, दैट इज लार्ज एरिया इज़ हॉलो इनसाइड विद इन। सो जो वॉल्यूम ऑफ आयरन शिप का होता है दैट इज़ वो आयरन शिप में मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ आयरन भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर भी आएगा एंड प्लास्टिक यूज़ होती है, स्टील यूज़ होती है, नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम विच द शिप is made, that so that is why it is called the effective volume. It is not, we are not talking about the only the iron, but the large portion of the ship is made from the iron, so that is why we are just talking about that is the iron ship. So effective volume जो होता है, जो mass of ship होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। So that is why कि ज़्यादा होने के कारण ड्यू टू दिस लार्ज वॉल्यूम, तो मास ऑफ की शिप से ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, जो डेंसिटी होती है शिप की वो लेस देन हो जाती है डेंसिटी ऑफ द liquid, that is water. So that is why it start floating on the surface of the water. तो एक और बात करें कि जो आपके पास ये जो शिप होती है जो वाटर में होती है, आपने देखा होगा कि उसका कुछ पार्ट पानी में होता है और यहाँ पे कुछ लाइंस दी जाती हैं उसकी भैया। सो इनको हम प्लिमसोल लाइन बोलते हैं, प्लिमसोल लाइन, प्लिमसल भी बोल देते हो, प्लिमसोल लाइन, जो कि प्रोटेक्शन मेजरमेंट के लिए दी जाती है कि उसके कारण में पता चल जाए कि वो जो शिप है वो कितना लोड उस पर हम लाद सकते हैं, कि उसको कितना लोड कर सकते हैं। कि ज़्यादा लोड करके तो कैसा होगा कि जैसे जैसे आप इसमें लोड डालोगे देन व्हाट विल बी हैपन, इट स्टार्ट सिंकिंग इन द वाटर बिकॉज उसका मास इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है इस शिप का। एज आई टोल्ड यू दैट कि वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण मास के तो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। एज वी नो दैट कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, सो मास उसका इंक्रीज़ होना शुरू होगा बिकॉज वी आर प्लेसिंग द लोड ऑन द इन द शिप। सो ये जो प्लम लाइन्स होती हैं इसको हम प्लिमसोल लाइन बोलते हैं, लोड लाइन्स भी बोल देते हैं। तो वो सेफ्टी मेजरमेंट के लिए होती है कि कितना लोड आप उसमें रख सकते हो। अगर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा सिंक होना शुरू हो जाएगा, तो मास इंक्रीज होने के कारण तो इसका डेंसिटी जो शिप की टोटल अफेक्टिव डेंसिटी वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, देन इट विल बी स्टार्ट सिंकिंग इन द
वाटर. सो दिस इज द फॉर द प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स के लिए प्लिम्सल लाइंस होती हैं, इसके दी जाती हैं. So next is the we have the submarine. So a submarine can increase or decrease its effective density as compared to the density of the seawater according to the submarine may sink or may float on the seawater. So what is happen? Look at that. Here are the compressed air cylinders given in the submarine. Blast tanks होते हैं इसमें and compressed air cylinder here like that. So ये प्रोपेलर होता है जो इसको आगे और पीछे मूव करवाने के लिए यूज़ किया जाता है. So what is going on कि इसमें एयर भरी होती है कंप्रेस्ड फॉर्म में, इसको कंप्रेस किया जाता है. जैसे हमारे घर में एलपीजी के सिलेंडर होते हैं उसमें एलपीजी गैस को कंप्रेस किया जाता है तो फिर उसमें भरा जाता है. तो जब भी हम एयर को कंप्रेस करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, लेकिन ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया होता. लुक एट दैट, दीज आर कॉल्ड द प्लस टैंक्स और इनको हम बैलेंस टैंक भी बोलते हैं, बैलेंस टैंक. सो व्हाट इज़ हैपन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि व्हेन द बैलेंस टैंक्स आर फिल्ड विद वाटर, लुक एट दैट, जब इनको हम वाटर से भर देते हैं देन व्हाट विल बी हैपन कि वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है. तो टोटल जो डेंसिटी होती है वो सबमरीन की, जब हम इसमें वाटर को भर देते हैं देन व्हाट विल बी हैपन इसकी टोटल अफेक्टिव डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है. सो जो डेंसिटी ऑफ सबमरीन इंक्रीज़ हो जाती है दैट इज़ ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इट स्टार्ट सिंकिंग इन द वाटर. और अगर हम सबमरीन को दैट इज़ सबमरीन, इफ द सबमरीन हैज़ टू बी सरफेस देन जो कंप्रेस्ड एयर होती है ना, ये जो होती है तो इसको इसमें से जो एयर होती है ब्लोन इन द ब्लास्ट टैंक, उनको ब्लास्ट टैंक में भर देते हैं. देन व्हाट विल बी हैपन कि वाटर उसमें बाहर निकल जाता है और इसमें भर जाती है एयर. देन व्हाट विल बी हैपन तो अफेक्टिव डेंसिटी, अब एयर आ गई पानी की जगह, तो अफेक्टिव डेंसिटी जो सबमरीन की होती है दैट विल बी डिक्रीजेस फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो ये ऊपर आ जाती है, तो फ्लोट करना स्टार्ट कीजिए, बाहर आ जाती है. सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द सबमरीन. और देर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ फिश. फिश हैज़ एयर ब्लैडर, हम इसको स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं. इन हर बॉडी व्हेन इट सक्स एयर इन ब्लैडर इट्स अफेक्टिव डेंसिटी बिकम्स लेस एंड इट स्टार्ट फ्लोट्स ओवर द वाटर. व्हेन इट forces the air out from its bladder its average density becomes more and it sink in the water. So same case as we discussed in the submarine. तो इसमें एक एयर ब्लैडर होता है जिसको हम स्विम ब्लैडर बोलते हैं फ़िश के लिए, तो वो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट नहीं करती ऊपर या नीचे जाने के लिए वाटर में. सो जब वो अपने ब्लैडर में हवा को भर लेती है देन व्हाट विल बी हैपन कि उसकी जो अफेक्टिव डेंसिटी होती है फ़िश की दैट विल बी लेस दैन दैट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट स्टार्ट राइजिंग इन द वाटर, अप साइड में जाना शुरू कर देती है. देन इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. और अगर वो नीचे जाना चाहिए देन व्हाट विल बी हैपेंड वो उस एयर ब्लैडर में से एयर को बाहर निकाल इट एक्सपेल द एयर आउटसाइड इनटू द वाटर. देन व्हाट विल बी हैपेंड कि इफेक्टिव जो डेंसिटी होती है अब फिश की वो इंक्रीज़ हो जाती है देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर. देन इट स्टार्ट सिंकिंग इन द water. Look in this diagram in figure, look at that, this is the air bladder, look at that, this white color. So इसके साथ में किडनी, स्विम ब्लैडर दी लिखा हुआ है उन्होंने, स्पाइनल कॉर्ड है. हाँ, वन मोर थिंग है कि जो एयर ब्लैडर होता है वो बोनी फिशेस में होता है, दूसरी फिश में जिसमें बोन्स नहीं होती देन उनमें ये एयर जो हमारे पास ब्लैडर होता है इनके फिश में तो उनमें नहीं होगा. सो इट इज़ ओनली इन द बोनी फिशेस जिनमें बोन्स होती हैं उनमें ही होगा. सो इट हेल्प्स टू मूव अप एंड डाउन विदाउट यूजिंग देयर फिन्स. तो बिना स्विम किए जो फिश होती है वो अप एंड डाउन मूव कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस स्विम ब्लैडर. The next is in inverter batteries. Acid battery hydrometer is used to check the density of acid solution. A hydrometer works on the principle of flotation.